Good afternoon, students. Today we will continue our first lesson of history, the rise of nationalism in Europe. Yesterday we learned about unification of Germany, and today we will learn about unification of Italy. Like Germany, Italy is also divided into different areas or different parts or different states, and therefore like Germany, Italy has also a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynasties and states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. Understand? The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of the Bourbon kings of Spain. Even the Italian language has not acquired one common form and still had many regional and local variations are there, because there is no one state and therefore the people also spoke different languages. Italian language was not a only language. And when there is a discussion of Italian unification, the name of Mazzini was very important, because he was the leader of unification of Italy. Why? Because he had also formed a secret society called Young Italy for the unification of Italy, and it was a secret organization. The people did not know about that. And the failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 formed a secret society called Young Italy. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the matter of unification of Italy was in the hands of Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II. Sorry, when we talk about the unification of Italy, Mazzini is important, and as well as the state of Sardinia was also important, because the revolution was failed, and therefore the responsibility of unification of Italy was on the King Victor Emmanuel II. And what he has done in the eyes of the ruling elites. What is the meaning of elites? You know, beta? Elite means the learned people who have a respect in their society. They were learned as well as they rich, and they were intelligent. That people or the group of people is known as elites. And therefore in the eyes of the ruling elites of his region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. Now the chief minister Cavour, who led the movement unify the regions of Italy, was
And who is Kaur? Kaur was a officer of King Emmanuel, and he was not a revolutionary, not a democrat. Like many other wealthy, educated members of the Italian society, he spoke French much better than the Italian. Though a tactful diplomatic alliances with France engineered by Cavour, Sardinia, Piedmont succeed in defeating the Austrian forces in 1859. Means Cavour was not a faithful person, and therefore the war of Austrian forces in 1859, they defeat these forces. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Garibaldi joined the army in 1860. They marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rurals in 1861. Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. इटली, जर्मनी की तरह इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट पर एक इतालवी राजवंश का शासन था। इटालियन एकीकरण के विचार सबसे पहले मैज़िनी ने यंग इटली नामक अपनी सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से दिए थे। 1831 और 1848 में उनकी असफल क्रांतियों के बाद सार्डिनिया का राजा विक्टर द्वारा नेतृत्व किया गया था। सार्डिनिया के मुख्यमंत्री काउंट केवोर ने किसके साथ राजनयिक गठबंधन द्वारा एकीकरण प्रक्रिया का नेतृत्व किया। फ्रांस ऑस्ट्रिया को हराने और उत्तरी क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए दक्षिण भाग में गैरिबाल्दी ने स्थानीय किसानों के समर्थन को शामिल करके आंदोलन का नेतृत्व किया और स्पेन के शासकों को हटाने में कामयाब हुए। इस प्रकार विक्टर एम्यूनल द्वितीय के राजा के रूप में ताजपोशी के साथ एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। कौन से ईयर में? 1861 में। अब हम देखते हैं, जर्मनी की तरह इटली भी राजनैतिक तौर पे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। इसका भी एक लंबा इतिहास है। अब इटली उस वक्त 7 राज्यों में डिवाइड था। कुछ जो थे वंशानुगत राज्य थे और कुछ बहुराष्ट्रीय हैम्बर्सबर्ग साम्राज्य में शामिल थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। आ रहा है ना समझ में? जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट, मतलब ये जो 7 राज्य इटली में थे उसमें से सिर्फ ये सार्डिनिया पर ही इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र यानी स्पेन के ऊपर किसका राज था? तो बुर्बो राजाओं का राज था। और इतालवी भाषा को भी प्राधान्य नहीं था, क्योंकि उसके विरोध में क्षेत्रीय और स्थानीय
भाषाएं मौजूद थी। अब 1830 के दशक में इटली को एकत्रित करने के लिए मैज़िनी ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए, मतलब वो क्यों इटली को एकत्रित करना चाहता है, इसलिए उसने अपने उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक गुप्त संगठन भी बनाया था और गुप्त संगठन का नाम था यंग इटली। और 1831 और 1848 में जो क्रांतियाँ हुई थी वो असफल हुई थी, ठीक है। और इसीलिए अब इन 7 राज्यों को जोड़ने की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? सार्डिनिया के राजा के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन 7 राज्यों में से सिर्फ सार्डिनिया पर ही इतालवी राजवंश का शासन था। अब उसका शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और इसी के ऊपर फिर इटली को एकत्रित करने की जिम्मेदारी आ गई। तो उसने क्या किया? इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनैतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। यहाँ पे अभिजात वर्ग यानी बेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अभिजात वर्ग उन लोगों को कहा जाता है जो संपत्ति में, बुद्धि में और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जिनका समाज में ऊंचा स्थान होता है, उनको कहा जाता है अभिजात वर्ग। अब इसकी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर, और अब जब इमैनुअल पे ये जिम्मेदारी आ गई तो उन्होंने क्या किया? उनके जो प्रमुख मंत्री थे कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, पर ना तो वो एक क्रांतिकारी था, ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। मतलब जनतंत्र में विश्वास मतलब लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाला नहीं था। और वो भी बाकी अभिजात वर्ग के लोगों के तरह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर कौन सी भाषा बोलता था? फ्रेंच। फ्रांस से सार्डिनिया पॉडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काउर का हाथ था, इसकी वजह से सार्डिनिया पॉडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। और क्या हुआ? दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में वो प्रवेश कर गए और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। और इससे क्या हो गया कि जब ये इमैनुअल की सेना जब जीत गई, तब क्या हुआ? इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। पर इसमें क्या हुआ कि इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था राष्ट्रवाद यानी क्या। अब क्या हुआ? इसमें मज़ेदार बात देखो, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। मतलब क्या? राजा की पत्नी का नाम था ला इटालिया, और इटालिया के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। देखो बेटा स्लाइड में आपको दिख रहे हैं ना पिक्चर्स, वो कौन है? देखो, जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो मेन थे उनका नाम था वॉन बिस्मार्क, और जो इटली के यूनिफिकेशन में जिनका अहम रोल था उनका नाम था मैज़िनी। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ वी लर्न अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन।
No British nation existed before 18th century. Ethnic groups like English, Welsh, Scots inhabited British Isles, having their own cultural and political basis. Growth of English nations, wealth and power. English Parliament seized monarchy in 1688. Act of Union 1707 between England and Scotland formed United Kingdom of Great Britain. Systematic suppression of Scottish culture, language by English began. Many were driven out of their homeland. British helped Protestants against Catholics of Ireland. Later, Catholic revolt as suppressed. In 1801, Ireland was also incorporated forcibly into United Kingdom, and now we learn about this in detail. Some scholars at that time have said that the model of the nation state was Great Britain. In Britain, the formation of the nation was not the result of a sudden revolution. It was the result of long drawn out process. There was no English nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones. And what is the meaning of ethnic? It is given in your book, New Words. Retailers to common racial, tribal or cultural origin or background of that community, identities with or clans. This ethnic. So the primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as English, Welsh, Scottish or Irish, Scot or Irish. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions, or their ways of political and the way of cultural and political were same. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which nation state with England at its center can to be forged. The Act of Union between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. Understand, beta? The Act of Union between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. In another way, Scotland was under the influence of Great Britain, or Scotland was a part of Great Britain. The British Parliament was henceforth
dominated by the English members. The growth of British identity meant the Scotland's culture and political situations were systematically suppressed. The Catholic had inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak speak to their language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. ब्रिटेन का अजीब मामला। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र अस्तित्व में नहीं था। अंग्रेज़ी, वेल्श, स्कॉट्स जैसे जातीय समूह ब्रिटिश द्वीप में बसे हुए थे, जिनकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। अंग्रेज़ी राष्ट्रों के धन और शक्ति की वृद्धि। अंग्रेज़ी संसद ने 1688 में राजशाही पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संघ 1707 के अधिनियम ने ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन किया। अंग्रेज़ी द्वारा स्कॉटिश संस्कृति भाषा का व्यवस्थित दमन शुरू हुआ। कई लोगों को निकाला गया उनकी मातृभूमि से। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के कैथोलिकों के खिलाफ प्रोटेस्टेंट की मदद की। बाद में कैथोलिक विद्रोह को दबा दिया गया और 1801 में आयरलैंड को भी जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। आपके इसमें दिया है, देखो, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। तो ये क्या थी? एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज़, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। देखो यहाँ पे नृजातीय का दिया है, एक साझा नस्ल, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। मतलब क्या? राजा का शासन खत्म हुआ था। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना वर्चस्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनैतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया, उनका दमन किया गया और स्कॉटिश के निवासी
जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उनको कुचल दिया गया या उनको दबा दिया गया। वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को जिन कैथोलिक कुलों ने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें कुचल दिया गया और स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए या उनको अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।